السلام علیکم معزز ناظرین، آپ پرائم پوسٹ کا براہ راست شو اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں الحلیف ٹرسٹ نوا بازار، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج جڑ چکے ہیں اسی ٹرسٹ کے ایک ذمہ دار عارف بلال صاحب۔ عارف صاحب، آپ کا استقبال آج کے اس براہ راست نشریات میں۔ شکریہ جلال صاحب، ہمیں موقع دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، ابتدا میں جاننا چاہیں گے بلال صاحب کہ اس ٹرسٹ کی بنیاد کے حوالے سے اور کیا اغراض و مقاصد لے کر یہ ٹرسٹ وجود میں آیا ہے اور کیا صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیں جلال صاحب، ہم تقریباً پچھلے 5 سالوں سے اب اس میدان میں ہیں۔ حالانکہ انڈیویجولی ہم الگ الگ سطح پر ہم کام کرتے آئے ہیں، لیکن کچھ دوست جو ہے مل کر ہم نے یہ الحلی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے جی عارف بلال، عارف صاحب آپ جی بولیے آپ۔ جی بیچ میں بلینک چلا گیا۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ جو میریجیبل لڑکیاں ہوتی ہیں غریب گھرانوں سے، ان کو شادی کے معاملے میں کافی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شادی بیاہ کے سامان کے لیے، وہ ان کو اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو انیشلی ہم نے وہی سوچ کے اس ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن بعد میں جوں لوگ جڑتے گئے اور جوں معاملات جو ہے وہ سامنے آتے گئے، تو ہم نے اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھا دیا۔ اور ہمارا آج کل جو ہے پرائمری فوکس جو ہے ایجوکیشن پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے میں نے کہا کہ جو میرج سپورٹ پروگرام ہے ہمارا، وہ بھی بہت اچھی طرح چل رہا ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بھی جو ہے بڑے آرام سے چل رہا ہے۔ اور ہمارا اور ایک پروگرام ہے آسان نکاح پروگرام، الحمدللہ وہ بھی جو ہے بہت خوش اسلوبی سے ہم چلا رہے ہیں۔ جی جلال صاحب۔ جی بلال صاحب، اگر ہم بات کریں چونکہ آپ ایجوکیشن پہ آپ کا زیادہ فوکس رہتا ہے، تو کیا طریقہ کار رہتا ہے، کس طرح سے آپ ان مستحق لوگوں تک پہنچتے ہیں اور کیا کچھ ارینجمنٹس آپ کرتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے سے؟ جی جی صحیح فرمایا آپ نے۔ جو ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے اپنی پریورٹیز میں شامل کر لیا ہے، اور ہمارا جو ٹاپ فوکس جو ہے اس وقت ایجوکیشن پر کام کرنا ہے۔ اور اس میدان میں ہم پرائمرلی ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں اور وہ اپنی فیس جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ اس میں زیادہ تر وہ بچے ہیں جو آرفنس ہیں، چونکہ ان کے گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ایسے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کی فیس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم سینکڑوں ایسے بچوں کی فیس بھر چکے ہیں جو آرفنس ہیں، اور وہ انہی سکولز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے یتیم ہونے سے پہلے۔ ہم نے ان کو ڈسکنٹینیو نہیں کروایا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ اسکول میں کیوں نہیں ڈالا جاتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے ان کی حالت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ، وہ آلریڈی جو ہے ایموشنلی ڈرین ہو گیا ہوتا ہے اس اپنے پیرنٹ کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور اگر ہم پھر اس کو اس اسکول سے بھی ہٹا لیں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت افیکٹ ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو پرائمرلی ہم آرفن جو ہیں ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پوسٹ کووڈ سچویشن جو ہے ہم نے اور ایک سینیریو دیکھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور سے ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں بہت سارے آرٹیزن جو ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا، ان کے جو ہے کھانے پینے کے وعدے پڑ گئے، اور ایجوکیشن جو ہے اس نے بیک سیٹ لے لیا۔ تو ایسی فیملیز کو بھی ہم ان کے بچوں کو ان کی فیس بھی ہم بھرتے ہیں، اور بہت سارے جیسے میں نے کہا کہ پوسٹ کووڈ سینیریو میں بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے تھے ان کی نوکریاں چلی گئی، تو ان کے بچے جو ہیں وہ سفر کرنے لگے، ان کے بچوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یا جو کرونک ایلمنٹس میں جو لوگ جو ہیں انوالو ہوتے ہیں، خاص طور سے مان لیجیے کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا کڈنی پرابلمس میں کوئی انوالو ہے، یا خدا بچائے کینسر کے معاملے میں کوئی
पेशेंट है, तो उनके बच्चे जो है, उनकी एजुकेशन जो है वो बैक सीट ले लेती है। अब वो इन बीमारियों से लड़ें या बच्चों की फीस अदा करें, तो उनके बच्चे जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, उनकी तालीम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि इन बच्चों को हम सपोर्ट करें, और इसके अलावा जो नीट या जेईई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं या वो कोचिंग वगैरह जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, हमारी कोशिश होती है कि उनको भी जो है हम सपोर्ट करें। जी। तो आरिस बिलाल साहब, चूंकि ये आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, जो इसको आपने तरजीहात में रखी है, अब सवाल यहाँ पे एक है कि आप आसान निकाह भी करवाते हैं, और क्या कुछ सूरत हाल है उस हवाले से? क्या उस हवाले से मजीद क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? देखिए, हमारे 2 प्रोग्राम जो हैं, एक ये है कि जो लड़कियाँ अम, जिनके घरवालों ने ही उनका रिश्ता किया होता है, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है शादी-ब्याह के, या दुल्हन को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो हम उनको वो चीज़ें जो है वो फराहम करते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता उसके लिए एक एप्लीकेशन हमारे ऑफ़िस में डालनी होती है, और जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो मिनिमल फ़ॉर्मेलिटीज़ है, उनको पूरा करना होता है। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि कई मामलात में हमारे पास कुछ ऐसे लड़के भी आए जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो हमने उनकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरा की। जहाँ तक आसान निकाह का प्रोग्राम है, तो देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दरमियानेदारों की वजह से वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, आसान निकाह प्रोग्राम, जिसके ज़िम्मेदार एक अलग हमारे साथी हैं। तो वो उस प्रोग्राम के तहत हम ऐसे लड़की और लड़कियों को उनसे उनके निकाह करवाते हैं, जो सिंपल तरीके से इस्लाम के दायरे में निकाह करना चाहते हैं, बगैर किसी फ़ुज़ूल खर्ची के लिए। उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे ऑफ़िस में फ़ॉर्म भरना होता है, और फिर जो उसके ज़िम्मेदार हैं, वो बाकी कवायद जो है वो पूरी करते हैं। अच्छा, एक और चीज बिलाल साहब, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट्स हैं या मुख्तलिफ जो एनजीओज हैं, वो लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट के हवाले से कम सोचा जाता है। तो लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं या जो जिन्हें जरूरत चीजों की होती है, तो उन्हें एम्पावर करने के लिए आप क्या कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे लोग एम्पावर हो रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसका भी एक हमारा अलग सेक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा। उसके तहत जो हमारी लड़कियाँ हैं, उनको हम बुटीक चलाने के लिए तैयार करते हैं, कटिंग, टेलरिंग के लिए हमारे कई सेंटर चल रहे हैं, जो हमारा मेन सेंटर नवाब बाज़ार में, इसके अलावा बिमना में भी और एक हमारा सेंटर चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि ऐसे और कई सेंटर जो है, उनको चलाया जाए। दूसरा जो हमारा मेन ऑफ़िस है नवाब बाज़ार में, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक कंप्यूटर लैब जो है वो खड़ी कर रहे हैं, उस पे काम चल रहा है। और वहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, या जो इवन 10+2 वाले बच्चे हैं, जो ऐसे कोर्सेज़ करना चाहते हैं ताकि उनको इमीडिएटली रोज़गार मिले। मिसाल के तौर पर आजकल जो टैली वगैरह का या कोडिंग वगैरह का जो है, उसका बहुत चलन है, और खासकर टैली जो है, जो बिज़नेस लोग हैं, उनको उस काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो ऐसे लोगों को जो है जल्दी रोज़गार मिल जाता है। तो हम ऐसे कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि ये नौजवान हैं जो अपना रोज़गार जो है वो खुद चला सकें। इसके अलावा हमारा और एक प्रोग्राम भी है, जिससे हम मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी करवाते हैं बच्चों को जो इस मामले में इंटरेस्टेड हों। लेकिन लड़कियों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कटिंग टेलरिंग जो है, उसके हमारे कई सेंटर चल रहे हैं, और बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। इनफैक्ट हमारा एक कोलैबोरेशन भी हुआ था, जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनके साथ उन्होंने वो कोर्स करवाए थे, वहाँ सर्टिफ़िकेशन जो है उन्होंने की थी, और बहुत खुशअस्लूबी से वो प्रोग्राम भी तय हुआ, और जो बच्चियाँ जिनको हमने ट्रेन किया, उनकी सर्टिफ़िकेशन जो है पॉलिटेक्निक की तरफ से हुई, और उसकी वजह से उनको काफ़ी मदद जो है काम ढूँढने में मिली। अच्छा बिलाल साहब, आखिर पर जानना चाहूँगा ज़रूर, चूँकि ट्रस्ट बहुत सारे काम अंजाम दे रहा है, तो ऐसे में ये सारे काम अंजाम देने के लिए बहरहाल जो है रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिलसिले में, चूँकि ये भी मैंने इस हवाले से तहकीकन देखा है कि आप जो फूड के ज़रिए से लोगों की मदद करते हैं, आपको शॉपकीपर्स बहुत सारे लोग हैं, जो आपको उस हवाले से फराहम करते हैं, ताकि उन लोगों तक वो गुज़ा के जो आइटम्स हैं वो पहुँच जाएँ, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह से ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको अंजाम देने के लिए क्या क्या कहाँ से आप ये सारा चीज़ हासिल कर पाते हैं, ताकि ये सब अंजाम हो रहा है?
جی देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो ट्रस्ट है, ये हमारे जो लाइक माइंडेड कुछ दोस्त थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तो शुरुआत जो है वो हमारा जो अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस थे उससे हुआ। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो हम आगे बढ़ते गए तो कारवां भी बढ़ता गया। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़ गए जिन्होंने सिम करा के रखे हैं, तो हर महीने जो है उनके सैलरी से जो है या उनके बैंक अकाउंट से हर महीने एक छोटी सी रकम, मान लीजिए कि 200, 300, 400, 500 रुपए कटते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो उससे हम अपना जो है हिसाब किताब चला लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं, जो हमारे काम से मुतासर होते हैं, वो अपना डोनेशन वगैरह जो है वो हमें दे देते हैं, जिससे हम जो है ये पूरा काम जो है डोनेशन की बुनियाद पे होता है, और किसी तरह की कोई फंडिंग जो है सरकार वगैरह से हम नहीं ले रहे हैं अभी। और सारा काम जो है वो डोनेशन की बुनियाद पर होता है। और जहां तक जो मैरिजेबल लड़कियों को सपोर्ट करने का जो प्रोग्राम है, उसमें हमारे कई अजीज इज्जत इंसान हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमें आसान किस्तों पर ये चीजें जो है फराहम करते हैं, और हर महीने हम उनको किस्तों के तौर पर उनकी पेमेंट जो है वो करते हैं, और इस तरह से हम ये प्रोग्राम जो है चला रहे हैं। तो आखिर पर क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से अवाम उन्नास के लिए, क्योंकि इस सूरत हाल में जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नीड है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है। तो आसुदा हाल लोगों के लिए, खासकर जिनके पास सरमाया है या जिनके पास ठीक ठाक इकोनॉमी जिनके पास है, तो क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? देखिए, हमारा जो काम है बहुत ट्रांसपेरेंट है, हालांकि हम पब्लिसिटी नहीं करते। हम बहुत जो हमारे काम करने का तरीका है वो बहुत साइलेंट है। हम बहुत खामोश तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जिंदगियों को टच करने में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमेशा हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितने भी फंड्स हो वो कम पड़ जाते हैं जितने हमारे काम है। और हर साल जो है बच्चों की तादाद जिनको हम फी के हिसाब से सपोर्ट करना चाहते हैं वो बढ़ती जा रही है। और कभी ऐसा भी होता है कि लिमिटेड रिसोर्स की वजह से हम उन बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते जो हमारे सपोर्ट के हकदार हैं। और वजह यही है कि फंड्स की शॉर्टेज रहती है। और हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो इस हालत में है कि हमारे इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकें, तो वो जनरसली डोनेट करें अल अहली वेलफेयर ट्रस्ट के लिए। और सारी डिटेल जो है आपको अल अहली वेलफेयर ट्रस्ट .in हमारा वेबसाइट है, वहां पर आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, हमारा शोरगरी मोहल्ला नवा बाजार में लाल मंटू मस्जिद के बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है। हम इतवार को वहीं पर होते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा। और कोई हमारे साथ राब्ता करना चाहता है और जानकारी के लिए, तो हमारे फोन नंबर 7889486643 जो है वो उस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आरिज बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अल अहली ट्रस्ट नवा बाजार के हवाले से आपने तफसील हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है, और हम चाहेंगे जरूर आपको आने वाले वक्त में जरूर किसी मौजू पर मदऊ करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे और अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।